Hey, hello everyone. Welcome back to my YouTube channel Codesive. So today I am going to solve the lead code problem number 3510. Okay. So yesterday I can't upload the P2ED lead code P2ED because of my some problem. That's why I can't upload. But today I am going to solve the both lead code problem yesterday and today's. Okay. So today lead code problem is minimum pair removal to sort array 2. Okay. And yesterday is the problem study problem come minimum pair removal to sort array 1. Okay, the difference is between these two problems is only constraint. Okay, so the constraint given in the previous study question is the 50, and today's lead code PTT question is 10 to the power 5. Okay, so the slight change is between these two problems is the constraint. Okay, so just because of constraint this problem will be hard, and this problem becomes easy. Okay, so let's try to read the problem statement first. Okay, so problem statement is given an array nums, you can perform the following operation any number of times. Okay, select the adjacent pair with the minimum num sum in nums. Okay, if multiple such pair exist, choose the leftmost one. Okay, replace the pair with a sum with your sum. Return the minimum number of operation needed to make the array non-decreasing. Okay, you have to return the minimum number of operation. Okay, an array said to be non-decreasing. Okay, so यहाँ पे non-decreasing की definition बताई तो आपको पता ही होगा. ठीक है, if each element is greater than or equals to its previous element. Okay, if it exists. Okay, so let's understand the problem using this example. Okay, so example given as 5 2 3 1. Okay, तो ये हमारे पर एग्जाम्पल है. इसमें ये बोल रहा है, एक आपका क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द एडजेसेंट पेयर. ओके, विद द मिनिमम सम. आपको मिनिमम सम एक ऐसा पेयर सेलेक्ट करना है जो कि मिनिमम सम आपको दे. ओके, जो कि मिनिमम सम दे. ओके, एडजेसेंट पेयर का. ओके, और उसको आपको रिप्लेस कर देना है. ठीक है, उस इंडेक्स से, उस करेंट पेयर से. ओके, and you have to make this and repeat this until you didn't get the non decreasing array. ओके, तो आपको ये तब तक करना है, और आपको ये जितने भी बार भी आप करें ना तो आपको वो ऑपरेशन आपको वो रिटर्न करना है. ठीक है, यू हैव टू रिटर्न दैट ऑपरेशन, नंबर ऑफ काउंट ऑफ ऑपरेशन. ओके, तो यहाँ पर मेरा क्या है, 5 है एंड 2 है एंड 3 है एंड 1 है. ओके, अब यहाँ पर 5 है, 2 है, 3 है, 1 है. तो अगर हम 3 और 1 को चेक करें, ठीक है, 3 और 1 को लें, तो 3 और 1 हमारा क्या बनेगा, 4. ओके, 4. ठीक है, इफ़ आई चूज द 3 और 1 बिकॉज 3 एंड 1 गिव्स अस द मिनिमम सम. ओके, इफ़ वी टेक 5 एंड 2 इट विल गिव 7. ठीक है, इफ़ वी टेक 2 एंड 3 इट विल गिव 5, एंड 7 and 5 are not lesser than 4. Okay, that's why I am taking the 3 and 1 adjacent pair. Okay, so if I remove 3 and 1 and replace it with 4. Okay, if I remove 3 and 1 or replace with it, okay, or replace it, sorry, remove after removing 3 and 1 and put 4 here. Okay, if I put 4 here, the sum of these adjacent pair, okay, 3 and 1, so it becomes 5 2 and 4. It is still not becomes a non-decreasing. Okay, it is still not becomes a non-decreasing array. Okay, so again we remove the minimum sum in this array. So we remove the minimum sum. Okay, 5 and 2 7 and 4 and 2 is 6, so minimum sum is 6. Okay, so we remove 2 and 4. Okay, after removing 2 and 4 the array becomes 5 and 6. Okay, 5 and 6. Now this array becomes the non-decreasing array. Okay, so now count of operation we did, here is 1 and here is 2, so the count of an operation is 2, so we return the output 2. Okay, so that's why in this example the output is 2. Okay, so I hope you got the point what the question trying to say. Okay, so let's understand the brute force approach, which can you apply in the study POTD, that is 3507. Okay, so you can apply in this question. Okay, it will accept the कोड आपका जो रूट फोर फोर्स होगा वो इसमें एक्सेप्ट हो जाएगा, बट इन दिस टूडेज लीड कोड PTD इट विल नॉट एक्सेप्टेड. ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड द ब्रूट फोर्स अप्रोच फर्स्ट. ओके, तो ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या बोलती है, आपको क्या करना है, आपको चेक करते रहना है
सिंपल आपको क्या करना है, जो बोल रहा है क्वेश्चन में वो कर देना है। सबसे पहले आपको चेक करना है क्या एरे क्या सॉर्टेड है, क्या एरे सॉर्टेड है मीन्स नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। अगर नहीं है फिर वो ऑपरेशन कर दो, जो ऑपरेशन वो बोल रहा है, जो हमारा क्वेश्चन जो ऑपरेशन बोल रहा है वही ऑपरेशन कर दो। ऑपरेशन क्या बोल रहा है, आपको क्या करना है, आपको मिनिमम सम पहले से फॉर लूप से जो एक फॉर लूप चलाना है उसमें से आपको क्या करना है, आपको उसमें से मिनिमम सम फाइंड कर लेना है। ठीक है, तो मिनिमम सम तो हमारा इस फॉर लूप में क्या है, फॉर लूप चलाएंगे उसमें से मिनिमम सम निकाल लेंगे और उसकी इंडेक्स भी निकाल लेंगे, बिकॉज वी हैव टू रिमूव दैट पेयर आल्सो। ओके, सो हम उसकी इंडेक्स भी निकाल लेंगे और उसका सम भी निकाल लेंगे, मिनिमम सम जो होगा। तो मिनिमम सम 3 और इस पूरे एरे में हमारा 3 और 1 दे रहा है। ठीक है, ये मिनिमम सम हमारा एडिशन पे 3 और 4 दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा मिनिमम सम हो जाएगा, वो हमारा क्या देगा 4, एंड इंडेक्स वी स्टोर एट इंडेक्स is 2. Okay, so on 2 index we got the minimum pair, 0 1 2 and 3. So on the index 2 we got the pair 2 and 3, and the minimum sum is 4. Okay, so the sum is 4, and we replace it after executing the for loop, means we got the minimum sum, and we set at index 2 set the minimum value, means at 3 we set the 4 and remove that element also, remove that element, and that element is remove idx plus 1, means we have to remove that idx plus 1 element also. Okay, and we iterate this till we not get the sorted array. Okay, so it will give the this solution give us the O of n square time complexity, and it will not accepted in the today's LeetCode POTT. Okay, so we have to go for the optimal approach. Okay, तो ये हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई ये इस वाले सोल्यूशन की, किस कौन सा सोल्यूशन की, ये जो हमारा ब्रूट फोर्स सोल्यूशन है। ओके, तो आप ब्रूट फोर्स सोल्यूशन खुद से ट्राई कर लीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी इजी सोल्यूशन है, जो इसने बोला है बस मुझे वैसा ही करता जाना है। ठीक है, तो हम ऑप्टिमल अप्रोच ट्राई करते हैं एक बार। ठीक है, तो ऑप्टिमल अप्रोच में हमें क्या बोला गया था। ठीक है, तो ऑप्टिमल अप्रोच काफ़ी ईजी नहीं है, मैं ईजी नहीं बोलूँगी कि मुझे भी काफ़ी देर से समझ आएगी। ठीक है, तो मैं अभी काफ़ी ईजी नहीं बोलूँगी। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, जो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही थी, ये जो मैं पूरा लूप चला रही थी, ये मैं पूरा लूप रन कर रही थी, तो इसमें ये तो ठीक है, एक बार लूप चल रहा है। ठीक है, वो सॉर्टेड चेक कर रहा है। ठीक है, सॉर्टेड है कि नहीं है। ठीक है, और जो इनसाइड लूप है वो मेरा क्या कर रहा है, वो मेरा क्या निकालने में कोशिश कर रहा है, वो मेरा मिनिमम सम निकालने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, मिनिमम सम। ठीक है, हर बारी चला रहा है और मिनिमम सम निकाल रहा है। तो यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ी आ रही है। क्या कर रहा है, वो एक बार एक्स्ट्रा O ऑफ n चल रहा है। ठीक है, तो इस O ऑफ n को हम कैसे कंसोलिडेट कर सकते हैं, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इस O ऑफ n को हम O ऑफ 1 में कन्वर्ट कर सकते हैं, सो दैट वी गॉट द O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, O ऑफ n स्क्वायर से O ऑफ n में जाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक ही ऑप्शन है, वी हैव टू चूज दैट डाटा स्ट्रक्चर विच स्टोर द मिनिमम सम। ओके, we have to choose that data structure we give us the minimum sum in the O of 1. okay, so हमको वो डाटा स्ट्रक्चर चूज़ करना है जो हमें मिनिमम सम दे, मिनिमम सम दे किसमें, O of 1 में। ठीक है, वो हमें डाटा स्ट्रक्चर चूज़ करना है। ठीक है, तो डाटा स्ट्रक्चर कैसे चूज़ करेंगे, तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, मुझे मिनिमम सम चाहिए। ठीक है, O of 1 टाइम में, तो मिनिमम सम मेरा पहले मैं स्टार्टिंग में मिनिमम सम निकाल लेती हूँ। ठीक है, स्टार्टिंग में मेरा मिनिमम सम क्या है, 7 है। ठीक है, 7 है किस इंडेक्स के लिए, 0 के लिए। ठीक है, 0 है 1 के लिए, 5 है मेरा 1 और 2 के लिए। ठीक है, एंड 4 है मेरा ये 2 और 3 से। ओके, तो मैंने मिनिमम सम निकाल लिए सारे, मतलब सारे एडजेसेंट पेयर के सम निकाल लिए। ठीक है, अब जो मेरा मिनिमम होगा मुझे उसे टॉप पे कर रखना है, तो मिनिमम को टॉप पे रखने के लिए मेरे पास कौन कौन से डाटा स्ट्रक्चर है, आइदर वी कैन टेक प्रायोरिटी क्यू। ओके, और वी कैन टेक द ट्री सेट। ओके, और वी कैन टेक द ट्री मैप, or we can take the from these 3 we can take. Okay, but in the priority queue we take, but here the limit is that, like, if we take the priority queue, and priority queue will give us the minimum, like minimum is here 4 is the minimum sum, but we remove that. Okay,
But in this approach we also have to remove that pair also. Okay, why I am telling that, बिकॉज जब आप ये वाला पेयर रिमूव करेंगे, ये वाला 2 and 3 वाला पेयर, तो ये जो 2 है ना वो इस पर भी तो इम्पैक्ट डाल रहा है, इस 5 पे इस पर भी तो इम्पैक्ट डाल रहा है, तो हमें ये वाला पेयर भी तो रिमूव करना पड़ेगा भाई। ये जो 2 है मेरा, ये जो 2 है मेरा वो भाई इस पर भी तो इम्पैक्ट डाल रहा है 5 पे। देखो ना 5 + 2 यहाँ पे 7 लिख रखा है ना मैंने, तो ये इस पर भी इम्पैक्ट डाल रहा है। तो भाई मुझे इसका भी कुछ नोटंकी चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों को भी, ये भी मुझे पेयर रिमूव करना पड़ेगा। ये पेयर मुझे कैसे रिमूव होगा, जब मैं इस पेयर इसमें फाइंड करूँगी, ठीक है, इसमें फाइंड करूँगी, मतलब डायरेक्टली मुझे रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो डायरेक्टली मैं किस में रिमूव करती हूँ, या फिर मैं मैप ले सकती हूँ, ठीक है, या फिर मैं सेट ले सकती हूँ। बट क्यों प्रायोरिटी क्यों में मुझे डायरेक्टली मैं रिमूव नहीं कर सकती हूँ, पर्टिकुलरली बाई कॉलिंग द 5 and 2 with the particular object. Okay, we cannot delete, we can only get the top value, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो प्रायोरिटी की मैंने ले सकती हूँ, ठीक है। तो मैं सेट ले सकती हूँ, ठीक है, मैंने यूज़ किया सेट, ठीक है। और ये सेट मेरा क्या है, ट्री सेट है। ओके, ट्री सेट स्टोर द मिनिमम वैल्यू ऑन द टॉप, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, जो मेरा मिनिमम है यहाँ पर क्या है 4 और 2 है, तो मैं इसको टॉप पे करती हूँ, ठीक है। 7 मेरा नीचे आएगा, 5 1 मेरा यहाँ पे आएगा, ठीक है, एंड 4 2 मेरा यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये मेरी मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। तो मैंने इसको ऊपर कर दिया, ठीक है, क्योंकि मैंने ट्री सेट यूज़ कर लिया, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देते थे एक बार, ये मेरा क्या है, ट्री सेट। ओके, मैंने यहाँ पर ट्री सेट यूज़ कर लिया, ठीक है। क्यों मैंने यूज़ किया वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, बहुत अच्छे से, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मैंने ट्री सेट तो यूज़ कर लिया, तो मुझे ये O1 टाइम में मुझे ये O ऑफ log1 टाइम में देता है, सॉरी। तो ये मुझे 4 और 2 दे देगा O ऑफ log1 टाइम में, ठीक है। मतलब 4 ये मेरा सम है, एंड ये मैंने इंडेक्स स्टोर कर रखी है, ठीक है। इंडेक्स मेरी क्या है, इंडेक्स है, एंड 4 मेरा सम है, ठीक है। 4 मेरा सम है, ये हमारी इंडेक्स है। तो मुझे करना क्या है, मुझे बस क्या करना है, मुझे वो मिनिमम सम निकालना है और उसको मुझे डिलीट करना है, बस मेन चीज़ मुझे ये करनी है। और इसको ही करने में काफ़ी चीज़ हो जाती हैं, क्यों, जब मैं इसको करने जा रही हूँ तो भाई ये भी इस पर डिपेंड कर रहा है, ये थ्री इस पर डिपेंड कर रहा है। तो इन दोनों को भी भाई मुझे रिमूव करना पड़ेगा, मतलब इनसे जो रिलेटेड सम है ना इसको भी मुझे रिमूव करना पड़ेगा, और इससे रिलेटेड जो सम है उसको भी मुझे रिमूव करना पड़ेगा। तो काफ़ी गड़बड़ी हो रही है भाई। यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं 2 और 3 को रिमूव कर दूँ तो यहाँ पर सम क्या आएगा, सम से रिप्लेस करना है, तो मैं 5 रख देती हूँ, ये मेरा 1 होगा, ठीक है, और यहाँ पर मेरा 5 होगा। तो मेरा सेट जो किस प्रकार अपडेट हो जाएगा, जो मेरा सेट है वो किस प्रकार अपडेट होगा, सेट मेरा किस प्रकार अपडेट होगा, जो मेरा यहाँ पर जो मैंने 5 रख दिया, तो अब मेरा सेट भी तो अपडेट होगा ना। अब मैंने 4 और 2 को, जैसे मैंने 4 और 2 यहाँ पे 4 2 लिख रखा है, ओके, हाँ, यहाँ पे 3 2 5 होता है, या मैंने 5, 1 मिनट, ओके, सॉरी, यहाँ पर ये मेरा डिलीट ये वाला नहीं होगा, सॉरी, डिलीट मेरा ये वाला होगा भाई, ये वाला जो है ना डिलीट, 1 मिनट, ऐसा करते हैं इस 1 को मैं यहाँ पे कर लेती हूँ, 1 मिनट, इस 3 को एक और एलिमेंट बढ़ा लेते हैं, 1 मिनट, ऐसा करते हैं, इस 3 को मैं यहाँ कर लेती हूँ, 1 को यहाँ कर लेते हैं, और 2 को यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। अब 3 और 1 पे हमारा क्या हो गया है, 4, 1 मिनट, इसको 3 और 1, यहाँ पर इंडेक्स मेरी 1 हो जाएगी, थोड़ा सा, 1 मिनट, यहाँ पर मेरा 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये 5 और 3, ये मेरा यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर मेरा 8 हो जाएगा, ठीक है, और 0, एंड 2 पर मेरा क्या होगा, 2 पर मेरी हो जाएगी 3 2 1 3, ठीक है। 1 मिनट, तो फिर 3 2 मेरी स्मॉलेस्ट हो गई, 1 मिनट, मुझे ये स्मॉलेस्ट चाहिए भाई, इसको 2 करो, इसको 2 ही रहने दो, ठीक है, इसको 3 2 1 3, ओके, अब ठीक है। ये मेरी टॉप वाली तो मिनिमम रहेगी ना, तो 2 1 मेरा कितना होता है, 3, एंड यहाँ पर मेरा 2 हो जाएगा, एंड यहाँ पर जो होगा मेरा सेकंड वाले में मेरा 2 1 3 3 1 4, ठीक है, यहाँ पर 4 होगा, और ये मेरी कौन सी इंडेक्स होगी, 2, और ये मेरी इंडेक्स होगी 1, ओके।
एंड ये होगा मेरा 7, ठीक है। अब ठीक है, तो मैंने कौन सा डिलीट किया, मैंने ये वाला डिलीट किया 2 और 1, ठीक है। तो मिनिमम, क्योंकि सब मिनिमम सम मेरा यही दे रहा है। जब मैंने 2 और 1 को डिलीट किया तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा, 1 मिनट, इसको रिमूव करो, ठीक है, और इसको भी रिमूव करो, और यहाँ पर लिखो 2 1 मेरा 3 दे देगा, ये क्या दे देगा 3, और ये जो मेरा है ये तो मेरा 3 रहेगा, ठीक है। तो अब जब मैंने इसको डिलीट कर दिया 2 1 को, तो मेरा क्या आ गया 5 and 3 आ गया, ठीक है, 5 and 3 आ गया। अब मेरा जो अपडेटेड ट्री सेट होगा क्या होगा, जब मैंने 2 1 को लिया है, ये दोनों मेरे एलिमेंट रिमूव होने चाहिए, तो मैंने डिलीट कर दिया इन दोनों को मैंने डिलीट कर दिया है, ठीक है, और उसके जगह मैंने 3 ला दिया। अब सम भी तो अपडेट होगा ना, ये वाला मेरा डिलीट हो जाएगा, इसको मैंने डिलीट कर दिया, तो ठीक है। और जो मेरा 4 और 2 किसकी वजह से आ रहा था, इसकी वजह से ये भी डिलीट होगा। 5 और 2 7 किसकी वजह से, ये भी डिलीट होगा। इसकी जगह क्या जाएगा मेरा, इसकी जगह मुझे लाना पड़ेगा 5 और 3, ठीक है। 5 और 3 का सम मेरा क्या जाएगा 8 हो जाएगा, इसको मुझे रिमूव करना पड़ेगा और यहाँ पे लिखना पड़ेगा 8, 0, ठीक है। और यहाँ पर इसको भी डिलीट करना पड़ेगा, इसकी जगह मेरा क्या जाएगा 6, 1। इंडेक्स भी मेरी चेंज हो रही है, देखिए यहाँ पर इंडेक्स भी चेंज हो रही है। क्या हो रहा है, मैंने 5 और 3 को 8 कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर इंडेक्स मेरी 0 1 2 हो गए इंडेक्स, ठीक है। क्या हो गया मेरा 5 और 3 को मैंने रिमूव कर दिया है, सॉरी 5 और 3 को मेरा क्या हो जाएगा 6, एंड 3 और 3 मेरा क्या हो जाएगा, सॉरी 5 और 3 मेरा 8 हो जाएगा, एंड 3 और 3 मेरा 6 हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर चेंजेस मेरा क्या हो रहा है, चेंजेस मेरी इंडेक्स भी चेंज हो रहे हैं, क्योंकि अभी जैसे मेरा ये फर्स्ट है, ये मेरा सेकंड एलिमेंट है, ये दोनों मेरे पेयर है, पेयर 1 पेयर 2, ठीक है। पेयर फर्स्ट है और सेकंड है पेयर का, और ये सेकंड का नेक्स्ट है, और ये सेकंड का ये फर्स्ट का प्रीवियस है, ठीक है। तो मेरा क्या हो रहा है, जो फर्स्ट का प्रीवियस है, जो फर्स्ट का प्रीवियस है उसकी जो नेक्स्ट इंडेक्स है वो तो मेरी 1 ही रह रही है। यहाँ पर देखिए, जो ये प्रीवियस एलिमेंट था, ये फर्स्ट प्रीवियस था, उसकी जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो तो सेम ही है, ठीक है। नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो तो मेरा, सॉरी नेक्स्ट इंडेक्स है वो तो सेम ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये जो एलिमेंट है इसकी जो प्रीवियस इंडेक्स थी वो मेरी 1 है। यहाँ पर प्रीवियस इंडेक्स यहाँ पर मेरी 1 है, लेकिन अभी यहाँ पर इसकी प्रीवियस इंडेक्स चेंज हो गई, क्या हो गई है 1 हो गई। यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 2 थी, अब यहाँ पर क्या हो गई 1 हो गई है, यानी जो फर्स्ट की इंडेक्स थी वो हो गई है, ठीक है। और जो यहाँ पर जो फर्स्ट का नेक्स्ट था, जो फर्स्ट की नेक्स्ट इंडेक्स थी वो सेकेंड ना होके वो 3 हो गई है। आप ही देखिए ना, वो क्या हो गई मेरी 3 हो गई है, सॉरी 3 कह रही हूँ मैं, हाँ यहाँ पर 3 हो गई। मतलब मैंने यहाँ पर डिलीट कर दिया, बट एक्चुअली में डिलीट नहीं होगा। एक्चुअली में मेरा क्या होगा, एक्चुअली में मेरा 3 यहाँ पे ही रहेगा, ठीक है। एक्चुअली में मेरा 3 यहाँ पे ही रहेगा, और यहाँ पर मेरा क्या होगा, एक मिनट, एक्चुअली में मेरा क्या होगा, यहाँ पर मेरा 3 ही रहेगा इंडेक्स, और 2 पे मेरा 1 ही रहेगा, बट ये डिलीट हो जाएगा। एक्चुअली में नहीं डिलीट करेंगे, बट ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मेरा क्या हो गया, जो ये मेरा इसका जो प्रीवियस है, इसका प्रीवियस मेरा 1 हो जाएगा, ठीक है। इसका प्रीवियस मेरा 1 हो जाएगा, और इसका जो नेक्स्ट है वो 3 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों का चेंजमेंट होगा और किसी का भी चेंजमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो ये मेरा फर्स्ट सेकंड नेक्स्ट, ये मेरा तो चेंजमेंट मेरा यहाँ पे मोस्टली यहाँ पे मेरा चेंज क्या हो रहा है, हमें क्या ये जो सम है उसको अपडेट करना पड़ रहा है और इंडेक्सेस को अपडेट करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों काम करने पड़े। मेन काम मुझे जो मेरा सम आया, जो मैंने 2 + 1 करके सम निकाला है, 2 + 1 करके 3 सम निकाला है, उसको मुझे डिलीट करना है। इससे पहले तो इस चीज़ को डिलीट करना है, ठीक है। और फिर जो इन दोनों से सम बन रहे थे उनको भी डिलीट कर देना है, ठीक है। इन दोनों को भी मैंने डिलीट कर दिया है। फिर मेरा क्या हो रहा है, जो मेरी इंडेक्स है, जो मेरी करंट जो फर्स्ट की इंडेक्स है, फर्स्ट का जो प्रीवियस इंडेक्स है, फर्स्ट की प्रीवियस इंडेक्स क्या थी 0 थी, वो तो मेरा यहाँ भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई है। लेकिन जो फर्स्ट की नेक्स्ट थी, फर्स्ट का नेक्स्ट था, ये फर्स्ट इंडेक्स की जो मेरी नेक्स्ट थी 2, जो कि 2 मेरी डिलीट हो गई है, ये जो मेरा 1 है डिलीट हो गया, तो इससे मुझे कोई मतलब ही नहीं है। तो इसका नेक्स्ट क्या जाएगा, ये जो नेक्स्ट क्या जाएगा, सेकंड का जो सेकंड नेक्स्ट है की जो इंडेक्स है वो हो जाएगी, ठीक है। और सेम इसका जो प्रीवियस थी वो तो चेंज हो जाएगी, क्यों, प्रीवियस ये डिलीट हो गई है, तो इसका जो प्रीवियस क्या हो जाएगा, इसका प्रीवियस जो फर्स्ट थी वो हो जाएगी। तो यहाँ पर कुछ जो हम इंडेक्सेस हैं वो चेंजेस कर रहे हैं। इंडेक्स क्यों चेंज हो रही है, क्योंकि भाई यहाँ पर एलिमेंट डिलीट हो रहे हैं, इसीलिए उसको भी मुझे अपडेट करना पड़ेगा। दैट्स वाई यहाँ पर इंडेक्स भी थोड़ा बहुत चेंज हो रहे हैं, ठीक है। इंडेक्स चेंज हो रहे हैं, हमें ट्री सेट को अपडेट करना पड़ रहा है बारी बारी, और जितनी बार एक बार जो ये काम करेंगे
उसी को क्या बोलेंगे, एक ऑपरेशन। ठीक है, अब मेन चीज़ है ये कितने बार ऑपरेशन करना पड़ेगा, कब तक की ये करना पड़ेगा, ये पूरा सेट खाली हो जाएगा तब तक कि क्या ही करना पड़ेगा, मतलब क्या इसकी क्या अप्रोच होगी, तो वो ही मुझे बताना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने क्या बताया, तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर प्रीवियस इंडेक्स और जो नेक्स्ट इंडेक्स है ये भी मेरी चेंज हो रही है। या तो हम इसका करने का एक और तरीका है, या तो हम यहाँ पर डबली लिंक लिस्ट ले लें। ठीक है, तो डबली लिंक लिस्ट लेने से अच्छा है हम क्या करें, यहाँ पर एक एरे बना लेते हैं किसका, प्रीवियस इंडेक्स नाम का और नेक्स्ट इंडेक्स नाम का। ठीक है, प्रीवियस इंडेक्स नाम का और नेक्स्ट इंडेक्स नाम का। ये क्या स्टोर करेगा, ये मेरा प्रीवियस इंडेक्स स्टोर करेगा। लाइक 5 का प्रीवियस इंडेक्स कुछ भी नहीं है तो -1, 2 का 0 है। ठीक है, और इस 1 का 1 है और इस 3 का 2 है, तो ये मैंने प्रीवियस इंडेक्स से स्टोर कर लिए। सेम यहाँ पर भी इसका नेक्स्ट इंडेक्स क्या है, सिर्फ 5 का नेक्स्ट, सॉरी 0 का, हाँ सॉरी 5 का नेक्स्ट इंडेक्स 1 है, 2 की 2 है और 1 की 3 है। तो ये मैंने प्रीवियस इंडेक्सेस भी, सॉरी नेक्स्ट इंडेक्सेस भी स्टोर कर लिए। क्यों मैंने स्टोर की, क्योंकि यहाँ पर रिक्वायर्ड थी भाई, इंडेक्स चेंज, एलिमेंट रिमूव हो रहा है, इंडेक्सेस चेंज होंगे। ठीक है, इंडेक्सेस भी हमारी चेंज होंगे क्योंकि एलिमेंट मेरा रिमूव हो रहा है। ओके, so I hope you got this point, why I am taking the previous index and next index array. Okay, so now the main problem is that how many times we do that operation. Okay, how many times we do that operation. Okay, so like यहाँ पर सबसे पहले मैं वो पेयर्स को काउंट करती हूँ जो ये एरे को सॉर्ट नहीं होने दे रहे हैं, जो यहाँ पर बाधा बन रहे हैं, काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं एक एरे को सॉर्ट होने के लिए। तो जो मेरा एक एरे है यहाँ पर, लाइक ये मेरा जो एरे है 5 2 1 3, ठीक है, 5 2 1 3, तो इस एरे को मैं यहाँ पर कॉपी करती हूँ पहले। ठीक है, जो मेरा 5 2 1 3 है, ठीक है, यहाँ पर मैं लिखती हूँ 5 2 1 3 को। ओके, एक बार, तो ये मेरा एरे है 5 2 1 3। ठीक है, इसको मैंने लिखा है यहाँ पर। अब मेन चीज़ मेरी यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है, मेरी दिक्कत ये आ रही है कि इस 5, ये जो मेरा 2 है छोटा है और मेरा 5 बड़ा है, तो इसकी वजह से मेरा एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ठीक है, 2 और 1 भी प्रॉब्लम क्रिएट, क्योंकि भाई 2 को पीछे होना चाहिए, 1 को आगे होना चाहिए। सेम यहाँ पे 5 को पीछे होना चाहिए, 2 को आगे होना चाहिए। ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। 1 और 3 प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम वो पेयर पहले काउंट कर लेते हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो प्रॉब्लम कौन सा क्रिएट कर रहा है, एक तो 5 और 2 क्रिएट कर रहा है, 2 और 1 क्रिएट कर रहा है। तो मैक्सिमम पॉसिबल जो मेरे पास पेयर हैं जो मेरा क्रिएट कर रहे हैं प्रॉब्लम क्या क्रिएट कर रहे हैं, सॉर्टेड नहीं होने दे रहे हैं। तो वो मैक्सिमम पॉसिबल, यहाँ पर क्या लिखते हैं, मैक्सिमम पॉसिबल, जो मेरे मैक्सिमम पॉसिबल पेयर हैं, मैक्सिमम पॉसिबल पेयर्स हुए हैं वो मेरे कितने हैं, 2 हैं यहाँ पर। तो मोस्टली मैक्स ऑफ मैक्स वी गो एटलीस्ट 2 टाइम्स, मतलब हम 2 बार ही ऑपरेशन ये करेंगे, उसके बाद मुझे ये सॉर्ट हो जाएगा, ये मेरा एरे जो है वो सॉर्ट हो जाएगा। क्यों, यही 2 प्रॉब्लम है, यही 2 मेरे पास पेयर्स हैं जो प्रॉब्लम को क्रिएट कर रहे हैं, और तो कोई भाई है नहीं यहाँ पर पेयर्स जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हों, ऐसा तो कुछ है नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, जैसे यहाँ पर ऐसे मैंने ये 4 एलिमेंट लिए 0 1, ठीक है, एलिमेंट इसके इंडेक्स कर लें 0 1 एंड 2 एंड 3। ठीक है, ये मेरे पास 4 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, जैसे मैंने बी और सी को डिलीट किया, तो बी और सी को डिलीट होने से ए को भी फ़र्क पड़ेगा, ठीक है, डी को भी फ़र्क पड़ेगा। क्यों भाई, क्यों फ़र्क पड़ेगा, अगर भाई तुम किसी के नेबर में रहते हो, तुम किसी के नेबर पॉइंट हो, किसी के नेबर हो, तो अगर तुम्हारे पड़ोस में कुछ होगा तो तुम्हें भी तो फ़र्क पड़ेगा ना, तुम्हें तो फ़र्क पड़ेगा ना। क्यों पड़ोस में होगा कुछ, क्यों फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि भाई बी प्लस सी हम एडजेसेंट सम ले रहे हैं। ठीक है, ए प्लस बी का भी सम ले रहे हैं। ठीक है, बी प्लस सी का तो ले ही रहे हैं। ठीक है, सी प्लस डी का भी सम ले रहे हैं, क्यों, एडजेसेंट सम ले रहे हैं ना, तो यहाँ पर फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए फ़र्क पड़ रहा है, तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ रहा है, हमें इंडेक्सेस भी स्टोर करनी पड़ रही है, प्रीवियस क्या है, नेक्स्ट क्या है। अगर हमें इंडेक्स नहीं स्टोर करनी है तो हम डब्ल्यू लिंक लिस्ट का सहारा ले सकते हैं, बट लिंक लिस्ट लेने से अच्छा है ये हम स्पेस, मेरी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, बट इट विल गिव बेटर सोल्यूशन। ओके, ठीक है, ये भी अच्छा सोल्यूशन है। ठीक है, मतलब अच्छी अप्रोच है ये भी एक, ठीक है, काइंड ऑफ गुड अप्रोच। तो मेन मेरा क्या था, मैंने बता दिया कि कितनी बार ये लूप चलेगा, ये जो मैं ऑपरेशन करूँगी कितनी बार टाइम्स करूँगी, कितने टाइम्स करना पड़ेगा। मैक्सिमम पॉसिबल पेयर मेरे कितने आ रहे हैं यहाँ पे, 2, जो पेयर्स हमारे रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं हमारे एरे को सॉर्ट होने से, तो वो पेयर हमें निकालिए 2।
तो मैक्सिमम ये टू टाइम चलेगा, उसके बाद मेरा ऑपरेशन को सॉरी एरे को ये मेरा क्या कर देगा, सॉर्ट कर देगा। और जितनी बार ये ऑपरेशन चलेगा उतनी बार हम जितनी बार ये मेरा लूप चलेगा उतनी बार हम काउंट करते जाएंगे ऑपरेशन को, रिटर्न कर देंगे ऑपरेशन को। तो बस मुझे इतना ही करना था। बस ये मुझे यहाँ पर क्या करना था, सबसे पहले मुझे क्या करना था, ये जो पहले मिनिमम पेयर निकाल लेना है। ठीक है, मैं पहले स्टेप लिखती हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं समझाती हूँ क्या है क्या होगा। सबसे पहले मुझे क्या करना है, मिनिमम स्टेप निकाल लेने, ठीक है, मिनिमम स्टेप्स। ओके, मिनिमम स्टेप्स मैंने निकाल लिए, कितने थे, सॉरी मिनिमम कह रही हूँ, मैक्स स्टेप जो पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, मैक्स स्टेप्स दैट कैन बी पॉसिबल, और मैक्स पेयर्स जो भी मतलब जितने भी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो वो मैंने निकाल लिए। फिर सबसे पहले ये मुझे निकाल लेना है, ठीक है, तो जो कि मैंने निकाल लिए हैं। फिर मुझे क्या करना है, फर्स्ट मुझे ये करना है, ठीक है। दूसरा मुझे क्या करना है, दूसरे में जो दूसरा स्टेप होगा उसके बारे में मुझे क्या करना है, एक सेट बना लेना है। ठीक है, एक मिनट मैं करके ही दिखा देती हूँ, ठीक है, लिखने से अच्छा है, लिखने में टाइम ज़्यादा जाएगा। ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत ही बचाना है, ठीक है, सेव करना है टाइम को हमको। ठीक है, तो अभी यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आएगी, अब मुझे क्या करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने 2 और 1 को रिमूव किया, ठीक है, 2 और 1 को रिमूव करने पे मुझे 5 और 2 को मुझे सेव इंसर्ट करना पड़ेगा, और 1 और 3 को मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो कैसे ऐड करेंगे, जैसे सबसे पहले तो रिमूव करना पड़ेगा भाई 5 और 2 को, 1 और 3 को रिमूव करना पड़ेगा। फिर उसके बाद ऐड करना पड़ेगा 5 और 3 को, 3 और 3 को ऐड करना पड़ेगा। तो किसको रिमूव कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर 2 एलिमेंट मैंने ले लिए, इन दोनों को मैं रिमूव कर रही हूँ, B+C को, तो वो तो रिमूव हो ही जाएंगे। ठीक है, एंड A और B को मुझे रिमूव करना है, और C और D को भी मुझे रिमूव करना है। तो मैं कैसे रिमूव करूँगी, मैं अगर क्या लिख दूँ, जैसे मैं पेयर बनाऊँगी, सबसे पहले मैं पेयर बनाऊँगी। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या लिखूँगी, पेयर लिखूँगी। ठीक है, पेयर बनाऊँगी, और पेयर में क्या मुझे लिखना पड़ेगा, जो मेरा पेयर है A+B वाला। ठीक है, A+B वाला पेयर है, और उसकी इंडेक्स क्या होगी, मेरी इंडेक्स क्या होगी 0, और 0 इंडेक्स मेरी क्या है, जो मेरा फर्स्ट का प्रीवियस है। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट रिमूवल हो गया, तो मुझे इस पेयर को पहले रिमूव करना है। ठीक है, मैं यहाँ पर रिमूव पेयर ले रही हूँ, जो मुझे रिमूव करना है। ठीक है, एक पेयर मुझे ये रिमूव करना है, और दूसरा पेयर मुझे क्या रिमूव करना है, C और D का सम। ठीक है, क्या लिखना है मुझे, D एंड C, और ये D और C मेरा किस इंडेक्स पे होंगे, कौन सी इंडेक्स, ये मेरी सेकंड इंडेक्स है, इससे चलेंगे, सेकंड एलिमेंट है। ठीक है, इससे। ठीक है, ये दोनों मुझे क्या ये मुझे पेयर क्या करने हैं, रिमूव करना है, वी हैव टू रिमूव दैट। ठीक है, और मुझे ऐड क्या करना है, वो तो लिखना है, मुझे ऐड कौन सा पेयर करना है। ठीक है, अब मुझे ऐड कौन सा पेयर करना है। ठीक है, ऐड मुझे क्या करना है, जो B+C का जो सम आया उसमें A को भी ऐड कर देना है। देखो ना यहाँ पर, ये जो B+C का मैंने 2+1 निकाला, जो मैंने 2+1 निकाला है, 2+1 मेरा 3 है। ठीक है, एंड 5 एंड 3 मेरा क्या हुआ, 8 हो गया। तो मुझे क्या करना है, जो मेरा A+B+C ये जो है, इन तीनों को मुझे ऐड करना है। ठीक है, जो मेरा नया जो मेरा पेयर होगा, जो मुझे ऐड करना है, क्या करना है, मुझे यहाँ पर लिखना है A+C+D, और मेरी इंडेक्स क्या होगी, यहाँ पर इंडेक्स मेरी क्या होगी, इंडेक्स मेरी जो ये है, इसको क्या बोलते हैं, ये मेरी A वाली इंडेक्स है, यही तो होगी ना। देखो ना, ये मेरी इंडेक्स कौन सी होगी, देखो भाई, ये मैंने क्या ऐड किया, मैंने ऐड किया है 5, एंड 5+3 मेरा क्या हुआ, 8, मतलब 5+2+1 मतलब 8, और 8,0 मतलब ये जो मेरी फर्स्ट प्रीवियस वाली इंडेक्स है, फर्स्ट प्रीवियस जो इंडेक्स है, वो मुझे ऐड करनी है उस वाले पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखना है, फर्स्ट प्रीव। ठीक है, और मुझे दूसरा वाला भी पेयर कौन सा बनेगा, जो मेरा राइट पेयर होगा वो कौन सा बनेगा भाई, वो मेरा क्या बनेगा, यहाँ पर C+D तो मेरा ऐड ही होगा, और मेरा प्लस यहाँ पर क्या होगा, एक मिनट, C+D, सॉरी एक मिनट, यहाँ पर क्या होगा, हाँ सॉरी, यहाँ पर B+C होगा ना कि C+D। ओके, सॉरी एक मिनट, B+C, यहाँ पर B+C काइंड ऑफ दीज 3। ओके, एंड जो राइट वाला होगा कौन सा होगा, यहाँ पर B+C तो हम ऐड कर रहे हैं, इसमें D और ऐड हो जाएगा। ठीक है, B+C, यहाँ पर क्या होगा, B+C एंड +D, और मेरी कौन सी इंडेक्स से ये पेयर काउंट हो रहे हैं, देखो ये जो मेरा था 3+3 मैंने 6 लिखा था, और इंडेक्स कौन सी थी मेरी 1, और 1 इंडेक्स मेरी क्या है, ये फर्स्ट वाली इंडेक्स है। तो मुझे यहाँ पर क्या लिखना है, फर्स्ट। ठीक है,
यहाँ पर मुझे क्या लिखना है, फर्स्ट। ठीक है, तो मैंने ऐड रिमूव कर लिए, सम को ऐड भी कर लिया है। ठीक है, अब मेरी मेन चीज़ आती है अपडेट करना। किसको अपडेट करना, जो मेरी इंडेक्सेस हैं उसको भी तो अपडेट करनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पर ये बनाए थे। ठीक है, यहाँ पर मैं दिखाती हूँ अपडेट करके। ठीक है, जो मैंने ये प्रीवियस इंडेक्स और नेक्स्ट इंडेक्स बनाए थे। अब देखो मैंने क्या बताया था, देखो जो फर्स्ट यहाँ पर जो चेंजेस आए हैं 5 3 1 2। ठीक है, 3 का प्रीवियस में ना कोई चेंज है, ना ही जो फर्स्ट प्रीवियस की वैल्यू है 0। ठीक है, इसका -1 ही है और इसका नेक्स्ट है वो भी 1 है। ठीक है, -1 और 1 है। ठीक है, जो 3 जो मेरा नया आया है सम 3, ठीक है, उसकी प्रीवियस मेरी क्या है, 1 है, सॉरी 0 है। ठीक है, यानी 1 की प्रीवियस क्या है, 0 ही रहेगी। लेकिन नेक्स्ट जो है उसका नेक्स्ट चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, जो मेरा नेक्स्ट है वो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट है मेरा क्या हो जाएगा 3। तो मेरा जो 1 का नेक्स्ट है वो मेरा यहाँ पे 2 हट के क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 हट के 3 हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला जो फर्स्ट का नेक्स्ट होगा, फर्स्ट का जो नेक्स्ट होगा वो क्या हो जाएगा, मेरा सेकंड नेक्स्ट की इंडेक्स हो जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगी, मैं यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा, एक मिनट, यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा क्या, जो मेरी इंडेक्स अपडेट होंगे उसमें क्या लिखना पड़ेगा, जो मेरा नेक्स्ट इंडेक्स का जो मेरा फर्स्ट है, यानी जो फर्स्ट की नेक्स्ट इंडेक्स है वो मेरी अपडेट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, सेकंड नेक्स्ट जो है वो हो जाएगा। ठीक है, ये मुझे अपडेट करना है इसमें। जैसे मैं एक बार और बताती हूँ, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, जैसे ये जो फर्स्ट थी, फर्स्ट की नेक्स्ट मेरी ये हो जाएगी ना 3। तो यानी नेक्स्ट इंडेक्स में जो मेरी 3 है ना, नेक्स्ट इंडेक्स ऑफ 3 मतलब सॉरी नेक्स्ट इंडेक्स ऑफ 1, जो 1 का नेक्स्ट होगा ना वो 3 हो जाएगी। यानी 3 कौन है, मेरा सेकंड नेक्स्ट है, तो मैंने सेकंड नेक्स्ट लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, अब मुझे इसका भी तो अपडेट करना है ना। अब देखो 3 की जो नेक्स्ट होगी वो तो भाई सेम ही रहेगी, बट 3 की प्रीवियस चेंज आएगी। क्योंकि भाई इसके पीछे वाली जो वैल्यू है वो डिलीट हो रही है, वो रिमूव हो रही है, तो इसका क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट की इंडेक्स है वो उसकी प्रीवियस हो जाएगी, जो फर्स्ट इंडेक्स है वो मानी क्या हो जाएगी, प्रीवियस हो जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रीवियस किसका चेंज हो रहा है, प्रीवियस इंडेक्स किसकी चेंज हो रही है, जो मेरी प्रीवियस इंडेक्स है वो किसकी चेंज हो रही है, सेकंड नेक्स्ट। ठीक है, और सेकंड नेक्स्ट मेरे यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट, ये मेरे चेंज आ रहे हैं किसमें, इंडेक्स वाले में। ठीक है, यहाँ पर मेरा ऐड हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर मेरे इंडेक्स अपडेट हो रहे हैं। ठीक है, क्या मुझे लिखना है, इंडेक्स अपडेशन। ठीक है, क्या है, इंडेक्स अपडेशन। एक मिनट, ये कॉपी, एक मिनट, यहाँ पर मेरा क्या था, इंडेक्स अपडेशन। ठीक है, ये इंडेक्स अपडेशन है, ये मेरा रिमूवल और एडिशन है किसका, सम का। ठीक है, मिन सम का। अब बस मेरा हो गया, बस ज़्यादा नहीं है इसमें। और मुझे क्या करना है, अब मेरा मेन चीज़ है कि मैं इस पेयर्स को कैसे अपडेट करूँ, क्योंकि पेयर्स मेरे 0 होंगे तभी तो, मतलब पेयर्स जब तक मेरे ग्रेटर देन 0 रहेंगे तब तक मुझे करना है। लेकिन इसको घटाएंगे कैसे, पेयर्स को घटाना कैसे, पेयर काउंट को मुझे घटाना कैसे है भाई, पेयर काउंट को मैं कैसे घटाऊँगी। तो पेयर काउंट को कैसे घटाना है, देखो जैसे यहाँ पर, जैसे ये था B+C मेरा रिमूव हुआ है। ठीक है, B+C मैंने रिमूव किया। ठीक है, सॉरी B एंड C मैंने रिमूव किया और मैंने B+C यहाँ पर रख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक बार मैं लिख के दिखाती हूँ सही से। इसको कॉपी करो, एक मिनट, इसको कॉपी करो और यहाँ पर लिखो। ठीक है, अब देखो, अब मैंने यहाँ पर क्या बताया, मैंने यहाँ पर बताया कि जो ये दोनों पेयर हैं मेरे, एक मिनट, मैंने क्या किया, मैंने क्या किया है, मैंने इन B और C को रिमूव किया। तो B और C को रिमूव करने पे मेरा B+C यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, रिमूव हो गए, मेरा B+C यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही मैंने B+C को लिखा तो क्या हो सकता है, एक बार क्या हो सकता है, जैसे मैंने B+C को लिखा तो या तो A मेरा बड़ा था, जैसे पहले मेरा A बड़ा था। ठीक है, और जैसे मैंने B+C ऐड किया वैसे ही A मेरा छोटा हो गया। कैसे, जैसे 5 था यहाँ पर, और जैसे यहाँ पर मैंने कुछ भी होगा, जैसे यहाँ पर मेरा पहले 2 था। ठीक है, एक मिनट,
जैसे यहाँ पे मेरा पहले 2 था और यहाँ पर मेरा 4 था, ठीक है। जब मैंने इन दोनों पेयर को ऐड किया तो मेरा यहाँ पर 6 था आएगा, ठीक है। और जैसे मेरा ये 5 था, पहले मेरा 5 जो था वो 2 से बड़ा था, लेकिन जैसे मैंने इन दोनों को ऐड किया अब मेरा 5 इस 2 + 4 से छोटा हो गया ना। तो एक केस तो मेरा ये हो सकता है कि मेरा जो मेरा फर्स्ट का प्रीवियस है, जो मेरा फर्स्ट का प्रीवियस है वो छोटा हो जाए, ठीक है। और दूसरा केस मेरा क्या हो सकता है कि इसका उल्टा पड़ जाए। क्या उल्टा पड़ जाए, एक मिनट, अरे यार, इसका उल्टा क्या हो सकता है, इसका उल्टा क्या हो सकता है, इसका उल्टा क्या हो सकता है। दूसरा केस मेरा कि मैंने यहाँ पर 5 था, ठीक है, और यहाँ पर जैसे 2 था और यहाँ पर 1 था, और यहाँ पर मैं 2 कर लेती हूँ, एक मिनट, यहाँ पर इसको रफ करो, ठीक है, और यहाँ पर 2 कर लेते हैं, ठीक है। एक मिनट, 2 ना करके 1 कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो पहले क्या था, ये जो 1 था वो 2 से छोटा था, यानी सही था, सॉर्टेड में था, ठीक है, सॉर्टेड ऑर्डर में था। लेकिन जैसे ही मैंने 2 + 1 किया यहाँ पर 3 आ गया। एक मिनट, जैसे मैंने 2 + 1 किया यहाँ पर 3 आ गया, ठीक है। तो 3 जैसे ही 3 आया तो एक मिनट, ये सॉर्टेड में आ रहा है। 2 + 1 ला के मुझे ये छोटा लाना है। एक मिनट, छोटा मैं कैसे ला सकती हूँ, कोई दूसरा लेते हैं, एक मिनट दूसरा लेते हैं। ये मुझे बड़ा दे रहा है भैया, मुझे एक मिनट, जैसे मैंने यहाँ पर लिया 5 ही ले लेती हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं 6 ले लेती हूँ, एंड यहाँ पर मैं ले लेती हूँ 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने 6, अभी मेरा क्या है, ये सॉर्टेड में है, ठीक है, 5 और 6 मेरा सॉर्टेड है, ठीक है, 5 और 6 मेरा सॉर्टेड है। और जैसे मैंने इसको ऐड किया तो मेरा ये क्या होना चाहिए, बड़ा हो जाना चाहिए, ठीक है। तो एक मिनट, इसको 5 + 1 ना लेके, अरे कोई सी वैल्यू हटाओ, इसको हटाओ भाई, वैल्यू नहीं लेते, इसको हटाओ। लाइक अगर मैंने मान लिया, एक मिनट, इसको हटाओ, ये हटाओ, ये 5 से ना बड़ा नंबर ले रहा है, एक मिनट, छोटा नंबर लेती हूँ मैं एक बार। जैसे मैंने यहाँ पर 3 ले लिया, ठीक है, और अभी जो मेरा एक मिनट, हाँ अब ठीक है, जैसे मेरा 3 है, ये मेरा जो 3 है वो अभी मेरा 4 से, यहाँ पर कोई एक एलिमेंट और होगा, ठीक है। अभी जो मेरा 3 है, अभी मेरा 3 और 4 से सॉर्टेड में है, देखिए लाइक मतलब 3 जो मेरा है वो छोटा है 4 से, ठीक है। लेकिन जैसे ही मेरा यहाँ पर कोई और एलिमेंट होगा, लाइक 4 और 2, और यहाँ पर भी कुछ एलिमेंट होंगे, ठीक है, 7 लाइक कुछ और, ठीक है। तो मैंने जैसे 4 और 2 को ऐड किया तो यहाँ पर भाई 6 बन गया। लेकिन ये भी तो मेरा सॉर्टेड में आ रहा है, एक मिनट, 2 और 4 लेती हूँ मैं, 2 और 4, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे आप कुछ लेके समझ लीजिएगा, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे एक मिनट, इसको हटाओ, इसको भी हटाओ, ठीक है, इसको भी हटाओ, ठीक है। मेरा कहने का मतलब है जैसे 3 है और यहाँ पर कुछ A है और यहाँ पर B है। अभी जो मेरा 3 है वो सही है, सॉर्टेड में है भाई, सॉर्टेड है, मतलब 3 जो है वो मेरा लेस देन है A से। लेकिन आफ्टर एडिंग दीज वर्ड टू, ओके, जैसे ये मिनिमम पेयर मेरा दे रहा होगा, ठीक है। तो मैंने जैसे A + B किया और यहाँ पर रिप्लेस कर दिया A और B से A + B को, ठीक है। तो यहाँ पर जो 3 है वो मेरा बड़ा हो गया भाई, बड़ा हो गया। तो ये तो मेरा पेयर को इंक्रीज़ कर दिया ना, इसने काउंट ऑफ पेयर को। अभी मैंने जब स्टार्टिंग में काउंट ऑफ पेयर निकाले थे वो मेरे 2 ही थे, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैंने A + B को ऐड किया और इसको A और B के रिमूव कर दिया A + B से, तो अभी मेरा क्या हुआ, जो 3 है वो मेरा बड़ा हो गया। तो ये मेरा काउंट ऑफ पेयर को बढ़ा देना चाहिए। जो मेरे पेयर्स बन रहे थे ना, जो मेरे ऐसे पेयर्स बन रहे थे, जो मेरे ऐसे पेयर्स थे जो रॉन्ग पेयर्स थे, जो मतलब सॉर्ट नहीं होने दे रहे थे मेरे को। तो अभी कुछ जैसे मैंने एक तो ये लिया था आउटपुट, ठीक है। इसमें क्या हो रहा था, जैसे ऐड करने से मेरा सॉर्टेड वे में आ रहा था, लेकिन एक बार ही ऐड करने से सॉर्टेड वे में नहीं आ रहा, तो वो मेरा काउंट को बढ़ा देगा ना, काउंट को बढ़ा देगा। तो यहाँ पर मेरा क्या होगा, काउंट को मेरा बढ़ा देना चाहिए। जो मेरा काउंट ऑफ पेयर है ना, जो मेरे ऐसे पेयर हैं जो रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं हमारे एरे को सॉर्ट होने से, तो इसको मुझे क्या करना है, बढ़ाना है भाई। ये मेरा बढ़ा रहा है तो मुझे ये बढ़ाना है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये सॉर्टेड वे में आ रहा है, सॉर्टेड वे में आ रहा है, तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, सॉरी डिक्रीज़ करना पड़ेगा, ठीक है। पेयर को क्यों डिक्रीज़ करना पड़ेगा, क्योंकि भाई ये मेरा सॉर्टेड में आ रहा है, इसीलिए मुझे ये डिक्रीज़ करना पड़ेगा। तो एक केस तो ये मेरा ये हो गया, ठीक है। और दूसरा केस मेरा क्या बनता है, जैसे A + A को इफेक्ट पड़ रहा था B से, D को भी तो इफेक्ट पड़ेगा ना C से।
डी को भी तो इफेक्ट पड़ेगा ना सी के, बी प्लस सी से होने से डी को भी तो इफेक्ट पड़ेगा। तो डी को इफेक्ट क्या पड़ेगा, जैसे मैं यहाँ पे दिखाती हूँ एक बार, डी को इफेक्ट क्या पड़ेगा, एक बार रुक जाओ, इसको कॉपी कर लेते हैं फिर दिखाती हूँ। कॉपी तो था ही आई थिंक, हाँ ठीक है। अब मेरा क्या है यहाँ पर, जैसे मेरा डी है, ठीक है। अभी मेरा यहाँ पर क्या था, जैसे मैंने मान लिया एक बी है एक सी है कुछ, और यहाँ पर मैंने मान लिया कुछ अच्छा सा लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने मान लिया कुछ 8 है, ठीक है। अभी मेरा क्या है, अभी मेरा क्या है, 8 जो है वो अभी मेरा जो मेरा बी प्लस सी है, एक मिनट, बी प्लस सी नहीं सॉरी, 8 जो है वो अभी मेरा बड़ा है किससे, सी से। अभी मेरा करेंट जो 8 है वो बी सी से बड़ा है, ठीक है। बट आफ्टर एडिंग बी प्लस सी 8 मेरा छोटा हो गया। ऐसा हो सकता है ना केस, 8 मेरा अभी मेरा बी प्लस सी जो सॉरी सी जो है वो भी छोटा है 8 से, मतलब 8 हमारा बड़ा है सी से, ठीक है। लेकिन बी प्लस सी आफ्टर एडिंग बी प्लस सी, तो यहाँ पर मैं बी प्लस सी कर दूँगी ना, बी प्लस सी कर दूँगी, ठीक है। और यहाँ पर भी कुछ एलिमेंट होंगे लाइक, ठीक है, बी प्लस सी कर दिया। लेकिन ये बी प्लस सी बड़ा हो गया भाई, ये बी प्लस सी ही खुद बड़ा हो गया 8 से। मतलब इसने क्या कर दिया, मेरे जो पेयर्स थे जो मेरे रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे एरे को शॉर्ट होने से, तो उसको मैंने उस पेयर को उसने बढ़ा दिया भाई। तो यहाँ पर भी मुझे क्या करना पड़ेगा, पेयर को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। इस केस में भी मुझे पेयर्स को वी हैव टू रिमूव पेयर्स, ओके। पेयर्स को मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस प्लस। लेकिन एक केस मेरा क्या हो सकता है, जो एक अच्छा केस हो सकता है, ठीक है। एक मेरा ये तो बुरा केस था भाई, इसने गंदा कर दिया, इसने बढ़ा दिया मेरे ऑपरेशन को। लेकिन एक केस क्या हो सकता है, जैसे बी और सी लिया मैंने, और यहाँ पर वैसे मेरा 3 है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अभी मेरा जो है 3 जो है वो छोटा है, ठीक है। मतलब बी सॉरी एक मिनट, छोटा नहीं, जैसे बड़ा है, ठीक है। अभी मेरा क्या है, बड़ा है, जैसे सी जो मेरा है 3 से बड़ा है, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने बी प्लस सी किया तो ये मेरा छोटा हो गया, ठीक है। 3 से बी प्लस सी करने पर ये मेरा 3 से छोटा हो गया, मतलब 3 यहाँ पे बड़ा हो गया, और बी प्लस सी करने पर छोटा हो गया। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये मेरा अच्छा पेयर हो जाएगा, मतलब ये मेरा पेयर को कम कर रहा है। ये मेरा सॉर्टेड हो गया ना, बी प्लस सी छोटा हो गया और 3 मेरा बड़ा हो गया, तो मेरा सॉर्ट कर रहा है। तो मैं यहाँ पर क्या कर दूँगी, पेयर को इंक्रीज़ कर दूँगी, सॉरी पेयर को डिक्रीज़ कर दूँगी, क्योंकि ये मेरा अच्छा है, ये पेयर को कम कर रहा है। ये ऐसे पेयर को कम कर रहा है जो पेयर हमारे एरे को शॉर्ट नहीं होने दे रहे, तो ऐसे पेयर को कम कर रहा है। और ये से पेयर को बढ़ा रहा है, सेम यहाँ पर यहाँ पर भी ऐसे पेयर को ये कम कर रहा है, और ये ऐसे पेयर को बढ़ा रहा है जो हमारे एरे को शॉर्ट नहीं दे रहे। तो यहाँ पर हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी। क्या कंडीशन लगानी पड़ेगी, कि अगर जो मेरा प्रीवियस एलिमेंट है, फर्स्ट का जो प्रीवियस एलिमेंट है, ठीक है, अगर वो स्टार्टिंग में छोटा था, ठीक है, स्टार्टिंग में छोटा था बी से, लेकिन उसके बाद में जैसे बी प्लस सी मैंने किया, स्टार्टिंग में छोटा था बी प्लस सी, जैसे मैंने बी प्लस सी किया उसके बाद वो बड़ा हो गया, तो भाई मुझे पेयर को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैंने बी प्लस सी को, जैसे ही मैंने एक मिनट इसके, और ये वाला मेरा क्या था, ये वाला जैसे ये तो मेरा बढ़ाना पड़ेगा। देखिए इस वाले केस में क्या था, जैसे मैंने पहले चेक किया, जैसे ए जो था मेरा पहले बड़ा था बी से, जैसे ए मेरा ग्रेटर था, बड़ा था बी से। लेकिन आफ्टर एडिंग बी प्लस सी ए मेरा छोटा हो गया, ठीक है, ए मेरा छोटा हो गया, तो मुझे काउंट पेयर को माइनस करना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पर कुछ कंडीशन लगा के ये करना पड़ेगा, ठीक है। तो कंडीशन क्या होगी मेरी, कंडीशन मेरी कुछ इस प्रकार होंगी, जैसे मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कंडीशन एक बार, ठीक है। वही कंडीशन मैं वहाँ पर भी लिख ले दूँगी, ठीक, कोड में लिख लेंगे डायरेक्ट वही कंडीशन, कि मुझे यहाँ पे चेक करना पड़ेगा इफ़ जो मेरा नम्स ऑफ फर्स्ट होगा, ठीक है, नम्स ऑफ फर्स्ट का फर्स्ट प्रीवियस, मतलब फर्स्ट का प्रीवियस जो होगा, जो नम्स का फर्स्ट का प्रीवियस जो होगा वो अगर मेरा स्टार्टिंग में बड़ा हुआ, ठीक है, स्टार्टिंग में बड़ा हुआ किससे, जो मेरा बी था, बी मेरा क्या था, फर्स्ट था ना, बी मेरा फर्स्ट एलिमेंट था ना, ये जो मेरा बी है, ये मेरा फर्स्ट एलिमेंट है ना, यहाँ पर देखो ये मेरा फर्स्ट एलिमेंट है ना, ये मेरा ए बी सी डी, लाइक इसी को मैंने लिया ए बी सी डी, ठीक है। तो ये मेरा बी है एक मिनट, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ये मेरा सी है, मेरा डी है। तो बी मेरा क्या कौन से इंडेक्स पे, फर्स्ट पे, ठीक है, मैंने मान लिया, सपोज कर लिया फर्स्ट पे, ठीक है, एज अ वेरिएबल, ठीक है, फर्स्ट पे। और इन स्टार्टिंग ये जो मेरा है जो प्रीवियस है, फर्स्ट का प्रीवियस है, वो अभी मेरा क्या है, बड़ा है, ठीक है सॉरी, ये मेरा अभी बड़ा है, ठीक है, एक मिनट, अभी मेरा क्या है, ये बड़ा है, ठीक है, किससे,
नम्स ऑफ फर्स्ट से। अभी मेरा ये बड़ा है, ठीक है, और मुझे इसे छोटा बनाना है, ठीक है, ठीक है। अभी मेरा ये बड़ा है और इसको मतलब अभी मेरा बड़ा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैंने b प्लस सी कर दिया, ठीक है, मतलब क्या करने मैंने फर्स्ट और सेकंड मैंने कर दिया, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दिया, यानी एंड अगर मैंने क्या कर दिया, नम्स ऑफ फर्स्ट प्लस नम्स ऑफ सेकंड कर दिया मैंने, b प्लस सी को मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। अगर ये जो दोनों इन दोनों का एडिशन है वो अगर मेरा बड़ा हो गया किससे, नम्स ऑफ फर्स्ट ऑफ प्रीवियस से, फर्स्ट ऑफ प्रीवियस से, तो मुझे क्या कर देना है, एक मिनट, काफ़ी बड़ी हो गई इसकी कंडीशन, थोड़ा सा छोटा कर दूँ मैं, एक मिनट, एक मिनट। ओके, तो ये मेरा क्या हो गया, ठीक है, हाँ आ गई। ओके, तो जैसे ही मैंने क्या किया, जैसे मैंने ये देखा कि पहले फर्स्ट और प्रीवियस जो थी, जो फर्स्ट का प्रीवियस था एलिमेंट था वो मेरा बड़ा था नम्स ऑफ फर्स्ट, लेकिन जैसे ही मैंने सेकंड और फर्स्ट को ऐड किया तो फर्स्ट प्रीवियस मेरा छोटा हो गया। तो ये तो भाई इसने तो मेरा सॉर्ट कर दिया ना एरे को, जो एक मेरा पेयर था उसने सॉर्ट कर दिया। तो यहाँ पर मैंने पेयर को कम करना पड़ेगा, क्या पेयर को माइनस माइनस करना पड़ेगा, माइनस माइनस। और सेम कंडीशन मेरी इस वाले के लिए होगी, इस वाले के लिए जब एक ऐसा भी तो मेरा पेयर आ सकता है ना जो मेरा इसको जस्ट उल्टा कर दे, मतलब इस कंडीशन में मेरा क्या करते हैं, इस कंडीशन जैसे जो मेरा फर्स्ट प्रीवियस था, स्टार्टिंग में मेरा क्या फर्स्ट प्रीवियस क्या था, मेरा जो स्टार्टिंग में मेरा फर्स्ट प्रीवियस छोटा ही था, मतलब सॉर्टेड में ही था। लेकिन जैसे ही मैंने फर्स्ट और सेकेंड किया तो उसने फर्स्ट नम ऑफ फर्स्ट को इंक्रीज़ कर दिया। तो इस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस को प्लस प्लस करना पड़ेगा, सॉरी पेयर को मुझे प्लस प्लस करना पड़ेगा। जो मेरे बैड पेयर्स हैं, जो मेरे रॉन्ग पेयर्स हैं, जो रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं मेरे एरे को शॉर्ट होने से, उसको मुझे बढ़ा देना है, क्योंकि इसने एक और पेयर ऐसा कर दिया जिससे मेरा एरे शॉर्ट नहीं हो पाएगा। तो मुझे पेयर को प्लस प्लस करना पड़ेगा, ओके। और इसके बाद मैं इसको अब सेकेंड वाले के लिए, सेकेंड केस के लिए करते हैं, ठीक है। तो सेकेंड केस में मेरा क्या होगा, सेकेंड केस मेरा मीन्स राइट साइड वाला जो केस होगा, मीन जो सेकेंड का नेक्स्ट होगा, ये वाला डी वाला केस के लिए। डी वाले केस के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर मैंने क्या किया, जैसे यहाँ पर मैंने क्या किया, जैसे यहाँ पर ये सेकेंड था, ठीक है, ये मेरा सेकेंड था, ये मेरा सेकेंड था ना, डी मेरा सेकेंड था, सॉरी सेकेंड नेक्स्ट था, ये मेरा सी मेरा सेकेंड था। तो अगर मेरा स्टार्टिंग में क्या था, जो मेरा डी है स्टार्टिंग में डी मेरा बड़ा ही था, मतलब अपनी ही पोजीशन पे था, और सी भी छोटा था, मतलब सी यहाँ पर जो था, सी जो मेरा यहाँ पर था वो लेस देन था, मतलब छोटा था, मतलब सी लेस देन डी था, मतलब सही था, सॉर्टेड में था। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकती हूँ, जैसे सॉर्टेड में था, लेकिन उसके बाद जैसे ही मैंने बी प्लस सी किया उसके बाद वो सॉर्टेड नहीं रहा, मतलब डी मेरा छोटा हो गया, बी प्लस सी मेरा बड़ा हो गया। तो उसने तो पेयर को बढ़ा दिया ना। तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि अगर सेकेंड ऑफ नेक्स्ट, जो सेकेंड का नेक्स्ट है वो अभी स्टार्टिंग में बड़ा था, ठीक है, किससे सेकेंड से, लेकिन जैसे ही मैंने नम्स ऑफ फर्स्ट किया, नम्स ऑफ सेकेंड किया, और तो वो बड़ा हो गया किससे, सेकेंड से, तो वो बड़ा हो गया। तो मुझे इस केस में क्या करना पड़ेगा, पेयर को मुझे प्लस प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि उसने जो रॉन्ग पेयर्स थे वो उसने उसको बढ़ा दिया, उसके काउंट को उसने इंक्रीज़ कर दिया। तो मुझे यहाँ पर प्लस प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर इक्वल टू का भी साइन लगा देती हूँ, ठीक है, क्योंकि इक्वलिटी का भी साइन यहाँ पर मुझे चेक करना पड़ेगा ना, इक्वलिटी का साइन, ठीक है। यहाँ पर जैसे स्टार्टिंग में ये सही था और यहाँ पर भी ये स्टार्टिंग में सही था, यहाँ पर जो मुझे चाहिए था वो स्टार्टिंग में यहाँ पर सही था, ठीक है, लेकिन बाद में उसने गड़बड़ी कर दी, ठीक है, बाद में उसने गड़बड़ी कर दी। जैसे नम्स ऑफ फर्स्ट और प्लस नम्स ऑफ सेकेंड, उसमें क्या हो गया, यहाँ पर जैसे स्टार्टिंग में ये बड़ा था और यहाँ पर वो छोटा हो गया, यहाँ पर भी मुझे इक्वल टू का साइन लगाना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो, जैसे ही नम्स ऑफ सेकेंड मेरा ग्रेटर था और इक्वल भी था, लेकिन उसने बाद में गड़बड़ी कर दी, तो मुझे पेयर को प्लस प्लस करना पड़ेगा। सेम यहाँ पर क्या होगा, सेकेंड का जो नेक्स्ट था ना वो स्टार्टिंग में मेरा छोटा था, ठीक है, मतलब गलत था, ठीक है, किससे, सेकेंड से, छोटा था सेकेंड से, सेकेंड बड़ा था मेरा, सेकेंड ऑफ नेक्स्ट मेरा छोटा था, लेकिन बाद में उसने सही कर दिया, किससे, फर्स्ट और सेकेंड जैसे ऐड हुए तो उसने क्या कर दिया, ये मेरे फर्स्ट और सेकेंड छोटे हो गए, हाँ छोटे हो गए, किससे, सेकेंड नेक्स्ट है, यानी सेकेंड जो नेक्स्ट है वो मेरा बड़ा हो गया, यानी यहाँ पर सही था। तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, प्लस,
पेयर को माइनस माइनस करना पड़ेगा। तो बस ये कंडीशन मुझे अप्लाई करनी है किसको, पेयर्स को इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करने के लिए। और यहाँ पर एक चीज़ और करनी पड़ेगी, क्या मुझे रिमूव करना पड़ेगा एंड ऐड करना पड़ेगा, और इंडेक्स को भी मुझे अपडेट करना पड़ेगा। बस 2 ही बारी इंडेक्स अपडेट करनी पड़ेंगी यहाँ पर, नेक्स्ट इंडेक्स को एंड फर्स्ट इंडेक्स को मुझे अपडेट करना पड़ेगा। 2 बार इंडेक्स को मुझे अपडेट करना पड़ेगा। ओके, ये नेक्स्ट इंडेक्स को एंड फर्स्ट इंडेक्स, सॉरी फर्स्ट की इंडेक्स को, क्योंकि ये दोनों चेंज हो रही हैं और कोई मेरा चेंज नहीं हो रहा है। तो 3 काम मुझे करने पड़ेंगे। क्या काम, कौन से काम? सबसे पहले मुझे रिमूव करना पड़ेगा एंड ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ही मुझे ये इंडेक्स को भी अपडेट करना पड़ेगा, और उससे पहले पेयर्स को भी अपडेट करना पड़ेगा। कौन से पेयर्स? ये वाले पेयर्स, ठीक है, ये जो मैंने पेयर्स बनाया। और इससे पहले भी मुझे एक पेयर काउंट को भी अपडेट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? जैसे मेरा यहाँ पर था, जैसे यहाँ पर मेरा बी, अगर जो मैंने बी था, जो मेरा पहले मेरा बी बड़ा था किसी सी से, तो ये मेरा रॉन्ग पेयर था। मतलब ये ऐसा पेयर था जो हमारे एरे को सॉर्ट नहीं होने दे रहा था। तो इस पेयर को मुझे ये इस वाले पेयर को मैंने बी प्लस सी कर दिया, तो ये वाला पेयर तो हट गया ना फिर। तो ये वाली कंडीशन भी मुझे चेक करनी पड़ेगी। अगर बी मेरा बड़ा है सी से, तो अभी मुझे पेयर को रिमूव डिक्रीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कंडीशन मुझे चेक करनी पड़ेगी। तो मैं डायरेक्ट कोड पे आती हूँ और वहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाते हैं, ठीक है। तो इससे पहले मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले मैं एक एन साइज़ का वेरिएबल बना के साइज़ को स्टोर करवाते हैं, साइज़ को स्टोर कर लेते हैं नम्स डॉट लेंथ। ओके, और क्या मुझे करना पड़ेगा, और मैंने क्या बताया था कि मुझे यहाँ पर एक टाइप नाम का मैं बना लेती हूँ, सॉरी लॉन्ग बना लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सम स्टोर करेंगे इसीलिए, ठीक है। लॉन्ग टाइप बना लेते हैं, ठीक है। न्यू लॉन्ग, क्यों मैंने टाइप बनाया, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा वो करना पड़ेगा ना, रिमूवल और वगैरह वगैरह, इस वजह से मैंने बनाया, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या स्टोर करती हूँ, और यहाँ पर मुझे सेट भी चाहिए ना, ट्री सेट, ठीक है, टू स्टोर द मिनिमम वैल्यूज, मिनिमम सम, ठीक है। तो ट्री सेट मैंने पेयर का बना लिया है, ठीक है। पेयर मैं एक क्लास बना लूँगी, ठीक है, जो मैंने बना रखी है अभी, ठीक है। और मिन सेट बना लेते हैं इसको, मिन सेट इक्वल्स टू न्यू ट्री सेट, ठीक है। और ट्री सेट मेरा क्या होगा, इसको भी मुझे अपडेट करना पड़ेगा। मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने क्या बताया कि मुझे मिनिमम वैल्यू टॉप पे चाहिए, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू टॉप पे चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक कंपैरेटर बनाना पड़ेगा ए कॉमा बी से, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले चेक करना पड़ेगा, अगर इफ़ जो ए डॉट सम है, ए डॉट मैंने एल ले रखा, सम नहीं ले रखा है, एल, अगर वो मेरा नॉट इक्वल्स टू बी डॉट एल है, ठीक है, मतलब इक्वल नहीं है, तो मुझे रिटर्न कर देना है, किसको कंपेयर करना है, कंपेयर लॉन्ग डॉट कंपेयर करना है, लॉन्ग में लॉन्ग डॉट कंपेयर, क्या कंपेयर करना है, ए डॉट एल को कॉमा बी डॉट एल को, इन दोनों को कंपेयर करना है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो मुझे क्या रिटर्न करना है, तो डायरेक्टली मुझे इंटीजर डॉट कंपेयर ए डॉट इंडेक्स कॉमा बी डॉट इंडेक्स। मैंने मतलब ये बोला है कि अगर इक्वल आ जाए तो मुझे इंडेक्स के हिसाब से कंपेयर करना है। क्यों? क्योंकि इसने बोला है कि मुझे जो आगे अगर मल्टीपल पेयर एग्जिस्ट करते हैं तो मुझे लेफ्ट मोस्ट वन चूज़ करनी है। लेफ्ट मोस्ट मतलब मुझे छोटी इंडेक्स चूज़ करनी है, इसीलिए मैंने छोटे वाले इंडेक्स को लेना है, ठीक है। तो ये तो मेरा ट्री सेट हो गया। अब उसके बाद मुझे क्या बनाना है, इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे प्रीव बनाना है, प्रीव इंडेक्स स्टोर करनी है, प्रीव इंडेक्स, ठीक है, एंड नेक्स्ट इंडेक्स, ठीक है। तो मैं बना लेती हूँ एरे, ठीक है, इंट प्रीव इंडेक्स इक्वल्स टू न्यू इंट एन एंड इंट नेक्स्ट इंडेक्स न्यू इंट एन, ठीक है। और यहाँ पर सेमीकोलन लगाना है और इसमें भी स्टोर कर लेने सारे एलिमेंट को, इंट आई को 0 एन आई प्लस प्लस, ओके। क्योंकि मुझे लॉन्ग में चाहिए इसलिए मैंने स्टोर किया है, ठीक है, अलग से टैम्प में, टैम्प ऑफ आई इक्वल्स टू नम्स ऑफ आई, ओके। एंड ये हो गया। इसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके बाद मुझे प्रीवियस वैल्यूज़ भी प्रीव और इंडेक्स स्टोर करने, प्रीव और नेक्स्ट को आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, ठीक है। एंड मुझे प्रीव इंडेक्स ऑफ आई इक्वल्स टू, प्रीव इंडेक्स के लिए मुझे i-1 करना पड़ेगा एंड नेक्स्ट इंडेक्स के लिए मुझे i+1 करना पड़ेगा। और मुझे मिन सेट में भी तो स्टोर करना है, मिन सेट
पेयर स्टोर करना है ना, min set डॉट ऐड न्यू पेयर डॉट ऐड न्यू पेयर। क्या ऐड करना है, जो temp ऑफ आई है प्लस temp ऑफ आई प्लस 1 है, उसको ऐड करना है किस पे, आई पे, ये करना है, ठीक है। और ये मैं यहाँ पे ना करके मैं इसको बाद में करती हूँ 1 मिनट, क्योंकि यहाँ पर मैं n तक की चला नहीं हूँ लूप को, ठीक है। तो इसको यहाँ पे ना करके यहाँ पे करते हैं, ठीक है। एक फॉर लूप चलाते हैं, एक और i = 0 लेस देन n प्लस प्लस, और ये फॉर लूप चलेगा मेरा n-1 तक, क्योंकि मैं यहाँ पर सारे स्टार्टिंग पेयर निकाल रही हूँ, ठीक है। और ये पेयर मैंने निकाल लिए, ठीक है। और मुझे वो पेयर भी तो निकालना है जो एरे को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, ठीक है। पॉसिबल पेयर जो एरे को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं सॉर्ट होने से, इंट पॉसिबल रॉन्ग पेयर, ठीक है, रॉन्ग पेयर्स, ठीक है। तो अभी स्टार्टिंग में 0 है, और यहाँ पर अगर इफ़ जो temp ऑफ आई जो है वो बड़ा है किसके, temp ऑफ आई प्लस 1 से, आई प्लस 1 से, ठीक है। तो मुझे पॉसिबल पेयर को इंक्रीज़ करना है, रॉन्ग जो पॉसिबल रॉन्ग पेयर्स है ना जो रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं तब उसको इंक्रीज़ करना है, ठीक है। तो अब मैंने सारी इनिशियलाइजिंग कर ली है, नेक्स्ट को सॉरी प्रीवियस इंडेक्स और नेक्स्ट इंडेक्स, ठीक है। और मैंने सेट को भी इनिशियलाइज कर लिया है, ठीक है, ठीक है। सारी इनिशियलाइजिंग हो गई है। अब मैं इंट ऑपरेशन भी स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। ऑपरेशन वाला इनका भी वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है। ऑपरेशन = 0 स्टार्टिंग में होगा, ठीक है। अब वाइल लूप चलाते हैं, जब तक मेरा ये पॉसिबल रॉन्ग पेयर है, अगर मैं जब तक मेरा ये है, जब तक है तब तक मुझे चलाना है, क्या मुझे ये लूप चलाना है। इसमें मुझे क्या निकालना है, सबसे पहले मुझे पेयर निकालना है, ठीक है। जो पेयर है वो मेरा स्टोर क्या स्टोर कर रहा है, पेयर जो है जो करंट मेरा है वो मेरा क्या है, ठीक है। सबसे पहले min set जो उसकी फर्स्ट पे होगा, ठीक है, वो मुझे निकालना है, ठीक है। जो मेरा फर्स्ट पे पेयर होगा वो निकालना है। तो फर्स्ट पे पेयर निकाल लिया मैंने, उसकी इंडेक्स निकालते हैं, ठीक है। फर्स्ट की इंडेक्स जो फर्स्ट और सेकंड पेयर की जो मैं फर्स्ट और सेकंड है उसकी इंडेक्स निकालते हैं, ठीक है। तो पहले तो मेरी क्या आएगी, पहले मेरी आएगी करंट डॉट इंडेक्स आ जाएगी, ठीक है। और दूसरी जो इंडेक्स है वो मेरी कैसे आएगी, दूसरी इंडेक्स मेरी कैसे आएगी, जो नेक्स्ट इंडेक्स की जो फर्स्ट का जो नेक्स्ट इंडेक्स है वही तो मेरी सेकंड है, देखो ना। जो मेरा फर्स्ट है ये मेरा फर्स्ट है, जो फर्स्ट की नेक्स्ट इंडेक्स क्या है मेरी 2 है, तो वही तो मेरा सेकंड है, वही तो मेरा सेकंड है, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे इंट फर्स्ट का प्रीवियस निकालना है, यानी फर्स्ट प्रीवियस निकालना है। तो फर्स्ट प्रीवियस मेरा क्या आएगा, फर्स्ट मेरा प्रीवियस आएगा प्रीवियस इंडेक्स से, ठीक है, प्रीवियस इंडेक्स ऑफ फर्स्ट। सेम मेरा इंट नेक्स्ट मेरा क्या आएगा, नेक्स्ट सॉरी सेकंड का जो नेक्स्ट होगा, सेकंड का जो मेरा नेक्स्ट होगा वो मेरा कैसे आएगा, सेकंड का नेक्स्ट मेरा नेक्स्ट से आएगा, नेक्स्ट इंडेक्स ऑफ किसका, सेकंड का, क्योंकि मुझे सेकंड नेक्स्ट चाहिए ना, इसलिए मैंने सेकंड लिया, ठीक है, ठीक है। अब मेरे ये सब आ गया। अब मुझे क्या चेक करना है, अब मुझे सबसे पहले चेक करना है अगर मेरा जो temp ऑफ फर्स्ट है, temp ऑफ फर्स्ट एलिमेंट है वो अगर मेरा बड़ा है, ठीक है, किसके, temp ऑफ सेकंड से, तो मुझे एक पेयर को माइनस करना है, क्योंकि ये पेयर तो मेरा कम होने जा रहा है, क्योंकि मैं इन दोनों को ऐड करूँगी, ठीक है, इन दोनों को ऐड करूँगी, ठीक है। ये पेयर मेरा कम होने जा रहा है, ठीक है। और मुझे ये पेयर को मैंने निकाला है तो इसको मुझे रिमूव भी कर देना है यहीं पर, ठीक है। min set डॉट रिमूव दैट पेयर, कौन सा, करेंट, इसको रिमूव भी तो करना है ना, एक मिनट, min set डॉट एक मिनट रिमूव करेंट, ओके। करंट को मैंने रिमूव कर दिया। इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद मुझे वो कंडीशन लगानी है, कौन सी कंडीशन, मुझे वो रिमूव करना है, क्या मुझे रिमूव करने हैं, सॉरी एक मिनट, हाँ, मुझे पेयर्स को काउंट को इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट किस हिसाब से करना है वो भी तो करना है ना, तो वो भी यहाँ पे करते हैं, ठीक है। और उसके बाद मैं ये भी ऐड कर लूँगी, क्या, ये फर्स्ट प्रेप सेकेंड ये भी तो मुझे ऐड करना है ना, तो ये भी मैं ऐड कर लूँगी। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, सबसे मैं चेक करती हूँ इफ़ जो मेरा फर्स्ट है फर्स्ट प्रेवर वो मतलब बाउंड्री में होना चाहिए मेरा, ठीक है। तो अगर ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए इसको पहले, सबसे पहले। और मैं यही वाली कंडीशन उठा के लगा देती हूँ, ठीक है। कौन सी कंडीशन, ये वाली, एक मिनट, ये वाली कंडीशन मेरी, ये कौन सी कंडीशन है, इसको कॉपी करो, ठीक है। ये मेरी फर्स्ट वाली कंडीशन, ठीक है। इफ़, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। इफ़ अगर ऐसा है, ठीक है, क्या मैंने बताया, अगर जो फर्स्ट प्रिव है वो पहले बढ़ा था किससे, नम्स ऑफ फर्स्ट से, ठीक है। इसको एक कर्ली ब्रैकेट में कर लेते हैं, ठीक है, ब्रैकेट में कर लेते हैं, ठीक है। और ये लेकिन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करने के बाद
जो मेरा प्रीवियस है वो छोटा हो गया। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूँगी, सिंपली मुझे ये जो पॉसिबल रॉन्ग पेयर है इसको डिक्रीमेंट कर देना है, ठीक है। एल्स इफ क्या है, एल्स इफ मेरा कौन सा था, ये वाला, जिससे मुझे इंक्रीज़ करने हैं। इस वाले केस में मेरा क्या हो जाएगा, इस वाले केस में क्या हो जाएगा मेरा, जैसे नम्स फर्स्ट प्रीवियस पहले तो मेरे सॉर्टेड में ही थे, ठीक है, पहले मेरा सॉर्टेड वे में था, लेकिन जैसे ही मैंने फर्स्ट और इंडेक्स सेकंड को ऐड किया तो वैसे ही ये मेरा मतलब गलत हो गया। क्या, फर्स्ट प्रीव जो था मेरा, फर्स्ट प्रीव पे जो मेरा एलिमेंट था वो बड़ा हो गया। तो उसके बाद तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रॉन्ग पेयर्स को मुझे इंक्रीज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये इसने गलत कर दिया ना, हमारा जो सॉर्टेड वे था उसने गलत कर दिया, तो उसको मुझे। और सेम मुझे यही चीज़ किसके लिए करनी है, सेम मुझे यही चीज़ करनी है किसके लिए, इसके लिए करने, किसके लिए, सेकंड नेक्स्ट के लिए, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे चेक करना पड़ेगा जो सेकंड नेक्स्ट है वो मेरा लेस देन n होना चाहिए, ठीक है, बाउंड्री में होना चाहिए। ये मेरा किस लिए है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ एक बार, ये मेरा a और b प्लस सी के लिए हुआ, ये मेरा कांड किसके लिए हुआ, b प्लस सी के लिए, और यहाँ पर मेरा किसके लिए होगा, b प्लस सी, एक मिनट, यहाँ पर होगा b प्लस सी कॉमा डी के लिए होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे चेक करना पड़ेगा क्या कंडीशन होगी, यही वाली कंडीशन होगी जो मैंने यहाँ पे लिखी है, उसको कॉपी करो टू सेव द टाइम, ठीक है, यहाँ पर लिखो। और अगर ऐसा है, क्या मैंने यहाँ पे लगाया कंडीशन, अगर नम्स ऑफ सेकंड जो है वो अगर पहले से बड़ा है किससे, नम्स ऑफ सेकंड से, कैसे मतलब सी से पहले डी जो है छोटा है मतलब, ठीक है, लेकिन बाद में जैसे ही मैंने नम्स ऑफ फर्स्ट किया और नम्स ऑफ सेकंड को ऐड किया तो वैसे ही नम्स ऑफ सेकंड जो है ये जो है मेरा सेकंड नेक्स्ट यहाँ पर क्या लिखना है मुझे, सेकंड नेक्स्ट, ये मेरा सेकंड नेक्स्ट है वो मेरा छोटा हो गया, मेरा छोटा हो गया। तो मुझे क्या करना है, सिंपली मुझे यहाँ पर रॉन्ग पेयर्स को बढ़ा देना, इंक्रीमेंट कर देना, क्योंकि इसने गलत कर दिया मेरा जो वे था ना सॉर्ट करने का वो गलत कर दिया, क्योंकि इसने सेकंड नेक्स्ट को छोटा कर दिया, जबकि ये बड़ा होना चाहिए था, ठीक है। सेकंड नेक्स्ट को इसने क्या कर दिया, छोटा कर दिया, इसके बड़ा होना चाहिए था, ठीक है। और यहाँ पर मेरा सेकंड नेक्स्ट होना चाहिए, सेकंड नेक्स्ट, इट शुड बी सेकंड नेक्स्ट, ठीक है। अब ये सेम ये वाला केस भी मेरा जो है कौन सा, इसके नेक्स्ट वाला, ठीक है, इसमें क्या होगा मेरा इंक्रीमेंट होगा, ठीक है, किसका, एक मिनट, एल्स इफ एक मिनट, एल्स इफ तो लगाई है, ठीक है। इस बारी मेरा क्या होगा, जैसे मेरा जो अभी मेरा इस बार क्या है, मेरा जो सेकंड नेक्स्ट है वो पहले से ही मेरा छोटा है जैसे सेकंड से, जबकि सेकंड नेक्स्ट को बड़ा होना चाहिए क्योंकि वो आगे है। और जैसे ही मैंने ऐड किया नम्स ऑफ फर्स्ट को नम्स ऑफ सेकंड को, तो वैसे ही नम्स ऑफ सेकंड नेक्स्ट है वो मेरा बड़ा हो गया। तो यहाँ पर मेरा काउंट ऑफ पेयर को डिक्रीमेंट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसने एक पेयर को कम कर दिया है, उसने सॉर्टेड वे में लगा दिया, ठीक है। अब मेरा दूसरा चीज़ क्या है, मुझे ये भी रिमूव भी तो करना है। अगर इफ़ मुझे रिमूव क्या करना है, मुझे इस वाले को रिमूव करना है। कौन से वाले को? मुझे सम को भी तो रिमूव करना है। कौन से? ये सम, इस सम को, इस वाले पेयर को, सम को, इन दोनों को मुझे रिमूव करना है। किसको? फर्स्ट और प्रीवियस को। तो यहाँ पर भी मुझे यही वाली कंडीशन लगानी पड़ेगी, जो फर्स्ट प्रीवियस है वो मेरा लेस देन 0 होना चाहिए। फर्स्ट प्रीवियस मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, मुझे मिन सेट डॉट रिमूव, क्या रिमूव करना है मुझे कौन से इंडेक्स, कौन से रिमूव करना है मुझे। देखो यहाँ पर जैसे a, b, c है, तो इसमें मुझे a प्लस b को रिमूव करना है। तो यहाँ पर क्या होगा, रिमूव न्यू पेयर कौन से, टैम्प ऑफ फर्स्ट का प्रीवियस, ठीक है। ये फर्स्ट का प्रीवियस a क्या हुआ, फर्स्ट का प्रीवियस प्लस टैम्प ऑफ फर्स्ट, और ये कौन सी इंडेक्स पे, करंट मेरा ये कौन सी इंडेक्स पे है, फर्स्ट प्रीवियस पे, ठीक है। इसको रिमूव कर देना है, ठीक है। सेम अब मुझे यहाँ पर ऐड क्या करना है, मिन सेट डॉट ऐड किसको करना है मुझे, न्यू पेयर जो टैम्प ऑफ जो मेरा फर्स्ट प्रीवियस है, फर्स्ट प्रीवियस प्लस, एक मिनट, यहाँ पर क्या करना है मुझे, FIR फर्स्ट प्रीवियस है, ठीक है। यहाँ पर मुझे क्या करना है, जो मेरा ये है, यहाँ पर मुझे नम्स क्यों मैंने ले रखा है भाई, टैम्प लेना है यार, हद है, टैम्प लेना है, एक मिनट, पर टैम्प लेना है मुझे, टैम्प, इसको
कॉपी करता हूँ भाई, ऐसे करने में ज़िंदगी बीत जाएगी मेरी। इसको टैम्प, ठीक है, इसको कॉपी करो, यहाँ पर पेस्ट करो टैम्प, ठीक है टैम्प से मैंने ओके मैंने वहाँ से कॉपी किया इसीलिए मैंने नम्स लिख दिया, बट इट शुड बी टैम्प ओके बिकॉज आई एम चेंजिंग फ्रॉम द टैम्प ओके। यहाँ पर टैम्प होना चाहिए हर जगह, इट शुड बी टैम्प ओके ओके। अब यहाँ पर मैंने जैसे ही, ठीक है टैम्प फर्स्ट प्रेप। अब जब मैंने इन तीनों को ऐड करना है ना, क्योंकि बी प्लस सी तो मेरा जगह, फिर ए प्लस बी प्लस सी लेना है, ठीक है मुझे। तो टैम्प फर्स्ट प्रेप ठीक है, और टैम्प ऑफ फर्स्ट प्लस टैम्प ऑफ सेकेंड। एंड ये कौन सी पोजीशन पे होगा, इंडेक्स मेरी क्या होगी, फर्स्ट प्रेप, ठीक है इंडेक्स मेरी फर्स्ट प्रेप ही होगी ना, ठीक है। अब दूसरे में मेरे क्या करना है, सेकेंड टाइप में, मतलब अगर अब यहाँ पर मेरा क्या ऐड करना है मुझे, इसको कॉपी करो, यहाँ पर पेस्ट करो, ठीक है। ये मेरा क्या होगा सेकंड के लिए, सेकंड नेक्स्ट के लिए, ठीक है सेकंड नेक्स्ट, यहाँ पर सेकंड नेक्स्ट मस्ट बी लेस देन एन होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे क्या चेंज करना है, चेक करना है, जैसे यहाँ पर अब इसके लिए क्या होगा मेरा बी कॉमा सी कॉमा डी, ठीक है। अब यहाँ पर डी के लिए हुआ तो मुझे यहाँ पर सी प्लस डी ये रिमूव करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे लिखना है सेकेंड एंड सेकेंड नेक्स्ट, ठीक है। क्या मुझे लिखना है यहाँ पर सेकेंड एंड सेकेंड नेक्स्ट, तो यहाँ पर ये सेकेंड नेक्स्ट हो गया और यहाँ पर मेरा सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर इंडेक्स क्या होगी मेरी सेकेंड, ठीक है। क्यों, इस वाली ये सी और डी ले रहे हैं तो इंडेक्स मेरी सेकेंड होगी, ठीक है। और सेम अब मुझे ऐड क्या करना है, जो मेरा ये है ना बी प्लस सी प्लस डी, यानी फर्स्ट एंड सेकेंड, यहाँ पर सेकेंड नेक्स्ट होगा, ठीक है। और यहाँ पर इंडेक्स मेरी क्या हो जाएगी, इंडेक्स मेरी क्या जाएगी, चूँकि मैं बी प्लस सी प्लस डी कर रही हूँ तो इंडेक्स मेरी क्या जाएगी, ये देखिए फर्स्ट इंडेक्स होगी। यहाँ पर कौन सी इंडेक्स होगी, ये फर्स्ट इंडेक्स, ये वाली इंडेक्स, क्योंकि बी प्लस सी प्लस डी हो रहा है ना, क्योंकि मैं बी प्लस सी को पहले लिख दूंगी, फिर बी प्लस सी प्लस डी मिलकर बनाएंगे एक पेयर, ठीक है। तो एक पेयर ये हो गया और एक पेयर ये, सॉरी एक एलिमेंट मेरा ये हो जाएगा बी प्लस सी वाला और एक डी, तो मेरा इंडेक्स मेरी ये फर्स्ट पे आ रही है ना, तो इंडेक्स मेरी यहाँ पे क्या होगी फर्स्ट, फर्स्ट जो कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है, देखिए इंडेक्स मेरी क्या होगी फर्स्ट, बी प्लस सी प्लस डी, इंडेक्स मेरी फर्स्ट। एंड यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी के लिए मेरी फर्स्ट प्रेप होगी, जो कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है, ठीक है। और रिमूव करने के लिए फर्स्ट ए प्लस बी फर्स्ट प्रेप, ए प्लस बी प्लस सॉरी सी प्लस डी सेकेंड, सी प्लस डी रिमूव करने के लिए सी प्लस डी यानी सेकेंड एंड सेकेंड नेक्स्ट सेकेंड, ओके सी प्लस डी, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर किसको अपडेट करना है, ठीक है इंडेक्स अपडेशन, ठीक है। मुझे क्या करना है प्रिप का, इसको कॉपी करो मैं यहाँ पर लिखाती हूँ, ठीक है। मुझे क्या करना है, जो मेरी प्रिप इंडेक्स है, जो ना प्रिप इंडेक्स है उस पर जो सेकेंड नेक्स्ट है, ठीक है मेरी सेकेंड नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर सेकेंड नेक्स्ट मेरी क्या है डी, तो डी के अब जो प्रीवियस क्या होगा बी होगा, डी का प्रीवियस, क्योंकि सी तो डिलीट हो जाएगा ना, यहाँ पर बी प्लस सी की जगह, सॉरी बी एंड सी की जगह यहाँ पर बी की जगह बी प्लस सी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी अपडेट कर देते हैं, देखो टैम्प ऑफ, एक मिनट, टैम्प ऑफ फर्स्ट, जो मेरी टैम्प ऑफ फर्स्ट है उसकी जगह मेरा क्या आएगा प्लस इक्वल्स टू टैम्प ऑफ सेकेंड, ठीक है ये हो जाएगा ना SEO सेकेंड आ जाएगा, ठीक है यहाँ पर। और यहाँ पर मुझे ऑपरेशंस को भी इंक्रीमेंट करना है, ठीक है ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर और यहाँ पर प्रीवियस सेकेंड नेक्स्ट में क्या हो गया फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है सेकेंड नेक्स्ट का जो प्रीवियस है वो फर्स्ट हो जाएगा। और सेम यहाँ पर नेक्स्ट सेकेंड को भी मुझे अपडेट करना है, ठीक है कौन से नेक्स्ट सेकेंड को, सॉरी नेक्स्ट प्रीवियस को, एक मिनट नेक्स्ट प्रीवियस बोल रही हूँ, सॉरी नेक्स्ट इंडेक्स ऑफ फर्स्ट, जो फर्स्ट की नेक्स्ट इंडेक्स होगी ना वो भी तो चेंज होगी ना, क्योंकि सी हमारा यहाँ पे हट रहा है ना, बी किसको चेंज करेगा, सॉरी बी किस पे डायरेक्ट करेगा डी पर, तो डी मेरी क्या है सेकेंड नेक्स्ट पे है, ठीक है। तो बी की नेक्स्ट क्या हो जाएगी सेकेंड नेक्स्ट, ठीक है। तो ये मुझे कुछ अपडेट करने हैं, ठीक है इंडेक्स में, तो ये मेरा इंडेक्स अपडेट हो गया। अब मैं लास्ट में क्या रिटर्न कर दूँगी, रिटर्न ऑपरेशंस, ठीक है ऑपरेशंस, एक मिनट ऑपरेशंस रन करते हैं, ठीक है शायद कहीं पे गलती हो सकती है, देखते हैं। ओके इफ़ मैंने डबल लगा दिया है कहाँ पर, ये ठीक है फिर से रन करते हैं। ओके अब कहाँ गलती हुई, सेकेंड ओके सेकेंड लिखने में गलती हुई है, SE होगा ना यहाँ पर,
ऐसी। ओके रन करते हैं, एक बार में भाई दे दो सारी गलती। कंपाइलर भैया क्या कर रहे हो? ओके टेस्ट केस पास हो गए, सबमिट करके देखते हैं। ओके सबमिट हो गया। ओके फाइनली। ओके okay, I hope you like the video which I explain. Okay, I explain from my 0 to 100%. Okay, I hope you like my video. Thank you so much for watching my video. Thank you so much guys.